નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં। હું છું આપની સાથે રાધા। તો જોઈએ મહત્વના સમાચારો વિસ્તારથી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસીય ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ચૂંટણીના પ્રવાસે છે। ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ચૂંટણીના આ મહિનામાં ગુજરાતની બીજી વખત મુલાકાતે આવ્યા છે। 2 દિવસમાં વડાપ્રધાન મોદીએ ગુજરાતને 15,000 કરોડથી વધારેનું વિવિધ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરી દિવાળી પહેલા જનતાને ભેટ આપશે। વડાપ્રધાન ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે કન્વેન્શન એન્ડ એક્ઝિબિશન સેન્ટર ખાતે ડિફેન્સ એક્સપો 2022નું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું। तो डिफेन्स एक्सपो में पीएम मोदीए संबोधन करता कह્યું કે डिफेन्स एक्सपो 2022 भारतનું ભવ્ય ચિત્ર પ્રદર્શિત કરી રહ્યું છે। અમૃતકાળ દરમિયાન અમારા દ્વારા લેવામાં આવ્યું હતું રાષ્ટ્રનો વિકાસ, રાજ્યોની ભાગીદારી, યુવા શક્તિ, યુવાના સપના, યુવા હિંમત અને યુવાનોની ક્ષમતાઓ છે। તો ગાંધીનગરના ડિફેન્સ એક્સપોના આ કાર્યક્રમમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે સંબોધન કરતા કહ્યું કે ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાનું વડાપ્રધાનનું વિઝન છે। डिफेन्स एक्सपो आत्मनिर्भरता तरफ આગળ વધી રહ્યું છે। આપણી પાસે મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હાઉસીસ છે, ઇવેન્ટ કરી રહ્યા છે, એમએસએમઈ સ્પેશિયલ ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવી રહ્યા છે। તો ડિફેન્સ એક્સપોમાં 10 થી વધારે દેશના મંત્રીઓ સાથે અમે ચર્ચા કરી। 2 દિવસમાં 10 દેશોના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરાઈ। ભારતની ડિફેન્સ ટેકનોલોજીનું વિશ્વના અન્ય દેશોમાં સન્માન છે। ડિફેન્સ એક્સપોના ઉદ્ઘાટન દરમિયાન સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંબોધન કરતા જણાવ્યું કે ડિફેન્સ એક્સપો પોલિસીમાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ છે। सीएम तरीके नरेंद्र मोदीए डिफेन्स इकोसिस्टम માટે પ્રયાસ કર્યા। તો ડિફેન્સ એક્સપોમાં યુવાનોને પ્રશિક્ષણ માટે પહેલ કરી રક્ષા શક્તિ અને યુનિવર્સિટીમાં સ્થાપના કરી હતી। તો ગુજરાતના એમએસએમઈની ક્ષમતા બતાવવાનો અવસર એટલે કે ડિફેન્સ એક્સપો। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी માટે પણ પોલિસી જાહેર કરવામાં આવી છે। ગુજરાત છેલ્લા 20 વર્ષથી ફાસ્ટ ટ્રેક વિકાસના પંથ પર છે। ડિફેન્સ એક્સપો થકી ગુજરાતમાં જોડાવા માટે આમંત્રણ પણ આપવામાં આવ્યું। તો વડાપ્રધાન મોદી 2 દિવસીય ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ગાંધીનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢના પ્રવાસે છે। સાથે સાથે તેમના દ્વારા 15,670 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર છે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ડિફેન્સ એક્સપોમાં હાજર હતા। સાથે સાથે રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહે પણ ત્યાં ઉપસ્થિત તમામ લોકોને સંબોધિત કર્યા હતા। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ ડિફેન્સ એક્સપો વિશે તમામ માહિતી આપી હતી। તમામ લોકો, નેતાઓ અને ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓ પણ ત્યાં હાજર હતા। ડિફેન્સ એક્સપોથી ભારતને અને સાથે સાથે ગુજરાતને કેટલા લાભો થશે, તમામ વાતો તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવી હતી। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં ડિફેન્સ એક્સપો યોજાયું હતું। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતની મુલાકાતે છે, ત્યારે તેમના દ્વારા કરોડોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સાથે સાથે કરવામાં આવનાર છે। ત્યારે ડિફેન્સ એક્સપોમાં આત્મનિર્ભરતા તરફ આગળ વધવાનું એક પ્રતીક જણાવ્યું છે। एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अनेक अवसर भी हैं। साथियों, हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है।
पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। एक विशिष्ट प्रतीक है डिफेंस एक्सपो, एक प्रतीक है राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में 1300 से अधिक इंडियन एग्जीबिटर्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस आयोजन की 80 से अधिक कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स और ऑफिशियल्स भी भाग ले रहे हैं। इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी यह प्रमाण है। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के बदलते सिनेरियो ने हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी प्रभावित किया है और उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज को भी महसूस किया है। आज हमारे पास बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए compete कर रहे हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी, यहां जब मैं बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा ध्यान मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइज सेक्टर पर नहीं है। वास्तव में एमएसएमईज को स्पेशल इंसेंटिव्स प्रदान किए जा रहे हैं और आज हम डिफेंस सेक्टर में एमएसएमईज की भागीदारी में बहुत ही उत्साहजनक ट्रेंड देख रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान एक विशेष बात पर आकृष्ट करना चाहूंगा। डेफ एक्सपो में पिछले 2 दिनों में 10 से अधिक कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ बाईलेटरल डायलॉग्स भी मैं कर चुका हूं। इसके अलावा भी दिल्ली या कहीं बाहर समय समय पर अलग अलग देशों के डिफेंस मिनिस्टर से मेरी बातचीत लगातार होती रहती है। इस दौरान मैंने देखा है कि दुनिया के अनेक देशों में हमारे डिफेंस गुड्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ट्रेनिंग व्यवस्था का बहुत बड़ा सम्मान है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 2009 में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना से देश और राज्य के युवाओं को डिफेंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे समयानुकूल शिक्षा अवसर दिए। यह दोनों यूनिवर्सिटी अब महत्व के राष्ट्रीय संस्थान एनएफएसयू और आरआरयू के रूप में उभर आई है। एनएफएसयू विश्व की पहली और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक, एरियल, डिजिटल फॉरेंस और संबंधित विज्ञानों को समर्पित है। एनएफएसयू में बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर और टेस्टिंग रेंज और बैलिस्टिक मटेरियल्स के मूल्यांकन का देश में अपनी तरह का सबसे पहला सेंटर कार्यरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की सभी एडिशन में आयोजित प्रदर्शनी में डिफेंस कंपनी को उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए खास डिफेंस पेविलियन को प्रोत्साहित किया है। कई गणमान्य डिफेंस कंपनीज को अपने डिफेंस इक्विपमेंट प्रदर्शित करने का
अवसर भी उन्होंने दिया है। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में ऐसे कई एमएसएमई है जो भारत के स्ट्रेटेजिकल एरोस्पेस और डिफेंस कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण पार्ट्स सप्लाई करते हैं। डिफेंस एक्सपो के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के ऐसे कई एमएसएमई उद्योग के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया।